Hi everyone, good evening, and I welcome you all to this another lecture on the channel Let's Crack Ninth and 10th CBSE. Okay, so now this lecture is in continuation with the previous lecture of the chapter that is light, reflection, and diffraction. Okay, so students, I would suggest you, if you haven't watched that video, please go and watch that video again. Please go and watch that video actually, because the link of that video will be given in this description box. So you can just go check out that video, because that video consists of the basics of light and reflection. Okay, so when you will get the basics, then only you would be able to understand what I am going to be telling in this session. All right, so students, yesterday we saw the basics of light and reflection, and now today we'll continue our chapter, and we will study what's further. Okay, so let me introduce you to myself for the new students. Hi, my name is Srijan, and I have done my BTech in computer engineering from Bharatiya Vidyapeeth College of Engineering, Pune. And I have been mentoring and teaching students of class 9th and class 10th for their CBSE examination as well as ICSE board examination since 2 years. So I have 2 years of teaching experience. Okay, so now today's lecture would be image formation by spherical mirrors. Okay, in the last lecture we saw about the basics of light, and how light enables us to see, or how light enables us to see the objects. And also we saw the reflection, the laws of reflection. We saw basic type of mirrors, what are plane mirrors, what are spherical mirrors, then what is a concave mirror, and what is a convex mirror. And we saw the parts of a spherical mirror. So that was all we saw in the previous video. In today's video we will be seeing image formation by spherical mirrors. Okay, students, before we move on to our lecture, I would like you to recall with the syllabus, revised syllabus, जो मैंने पिछले lecture में भी आप लोग को दिखाया था. So ये हमारे revised syllabus है जो कि CBSE ने दिया है. So यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा. मैंने जैसा कि आपको प्लान बताया था कि ये एक पार्ट है जो कि रिफ्लेक्शन के साथ डील करता है. द सेकेंड पार्ट इज अबाउट रिफ्रैक्शन, एंड द थर्ड पार्ट इज अबाउट एप्लीकेशन. तो मैंने आप लोग को बोला था कि मैं इस पार्ट को दो पार्ट में पढ़ाऊंगा, जिसमें पहला बेसिक वीडियो जो मैंने कल जो था हमारा वीडियो वो था, एंड द सेकेंड वीडियो वुड बी इमेज फॉर्मेशन एंड द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन. बट स्टूडेंट्स, देयर इज अ स्लाइट चेंज जो मैंने किया है, बिकॉज आई थॉट इट्स टू बी इम्पोर्टेंट. इस पार्ट के बारे में अभी हम बात नहीं करते हैं. इसमें जो हमने पहला बेसिक वीडियो हम देख चुके हैं, सेकेंड पार्ट में विच इंक्लूड्स, पहले तो हमारा इमेज फॉर्मेशन आता है. तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स. ओके, सो आज हम सिर्फ ये एक पर्टिकुलर टॉपिक देखने वाले हैं. ठीक है, कल के सेशन में हम देखेंगे मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो हम देखेंगे सैटरडे के लेक्चर में. एंड संडे को मैं एक रिवीजन लेक्चर रखूंगा, जिसमें कि हमने जितने भी कंसेप्ट देखे हैं हम फिर से उसको रिवाइज करेंगे. और कुछ टॉपिक्स जैसे कि मुझे स्टूडेंट्स ने बताया कि कुछ टॉपिक्स जो शायद मैं मिस कर गया हूं, एक बार मैं उसको फिर से उस लेक्चर में देखूंगा. ठीक है, इसके साथ साथ मैं स्टूडेंट्स आपको एक बात बताना चाहता हूं. जब भी मैं YouTube पे जब हमारा लेक्चर चलता है तो कुछ स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं जिसमें कि यू मेंशन सम ऑफ द टॉपिक्स यू थिंक दैट आई हैव फॉरगॉट टू टीच यू, और आई हैव फॉरगॉट टू मेंशन इन माय वीडियो. बट स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू रिकॉल दैट हम अभी आपको क्लास 9th और 10th की CBSE एग्जाम्स के लिए पढ़ा रहे हैं. सो वी स्ट्रिक्टली स्टिक टू द सिलेबस ऑफ CBSE. इसलिए हम नहीं चाहते कि हम आपको किसी भी तरह का कि आउट ऑफ बुक नॉलेज, ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा. इट्स वेरी गुड इफ यू आर एक्सप्लोरिंग एंड इफ यू आर गेटिंग सम नॉलेज आउट ऑफ द बुक, बट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन पर्टिकुलरली, so we take it very seriously that we should always be considering your syllabus for as the base, as the foundation to teach you. Okay, इसलिए मैं अभी जैसे आप मान लो मैं कुछ बताता हूँ, ठीक है, आप इंटरनेट पे देखोगे शायद आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसके बारे में मिल जाए. दैट्स वेरी ऑब्वियस. देयर आर लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, बट देन वी कैन नॉट include it in this particular video because this is a board preparation strategy video. So हम सिर्फ बोर्ड के सिलेबस को देखते हैं, and that is why I might miss some topics. जैसे कि
इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स देखते हैं। तो आप बोलोगे सर इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर्स क्यों नहीं देख रहे हैं? ठीक है, आई प्रॉमिस यू दैट रिलेटेड ऑल दीज रिलेटेड टॉपिक्स वी विल बी डिस्कसिंग ऑन संडे। जब हम संडे को लेक्चर में मिलेंगे तब मैं आपको, आप कोई भी सजेस्ट करो टॉपिक, मैं आपको वहां पे एक्सप्लेन कर दूंगा, एंड दैट्स माय प्रॉमिस, आई विल डू इट ऑन संडे। ठीक है, संडे को एक सब लोग अपने रिलैक्स मूड में रहते हैं, सो विल ट्राई नॉट टू लर्न एनी न्यू थिंग, we will be having just a revision of what we studied throughout these parts on the chapter light, and कुछ additional अगर आपको topics पढ़ने तो आप you can just suggest me in the comments. Okay, now coming back to our so second part जो आज हम देखने वाले हैं वो spherical mirrors के बारे में होगा. So again the next video on Saturday we will be having about the numericals based on mirror formula and this मैग्निफिकेशन। मैं बता दूं स्टूडेंट्स आपको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस आते हैं, साइन में लोग स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, दैट्स वेरी व्हेन वी कम टू नो अबाउट दैट कि साइन की वजह से प्रॉब्लम हुई है तो बहुत बुरा लगता है, बिकॉज बच्चे को फॉर्मूला पता है, बच्चे को पता है कि सब्स्टिट्यूट कैसे करना है, आंसर कैलकुलेशन कर लिया उसने, तो ये क्या क्या इस मिस्टेक्स होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वो हम लोग आज हम लोग सिर्फ इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स मूव ऑन and just a brief introduction to Unacademy. So Unacademy, as you know, it is the India's largest e-learning platform, and we the faculties, all the staff members, the technical team, everyone is working at their best to reach out to you and to how to make the content creative for you and how you can understand it more efficiently. Okay students, so it would be better if you get a subscription of Unacademy. I would suggest that, like anything, so please get a subscription of Unacademy, and there are many benefits that you will be getting with the subscriptions. The first benefit we have is daily life classes. In the daily life classes, the students, you get to know about, you get to have interaction sessions with the faculties. So हम आपसे interact करते हैं, आपके कोई भी doubts होते हैं वो आप हमसे पूछ सकते हो, या कोई भी क्वेश्चन होता है या कोई जब इंटरेक्शन हमारा होता है तो then it is very fruitful फॉर दी स्टूडेंट्स। तो इसलिए डेली लाइफ क्लासेस हम सजेस्ट करते हैं जिसमें हम लोग 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हैं। द सेकंड इज लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। ओके, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस में स्टूडेंट्स आपके लिए क्विजेस होते हैं जो आप अटेम्प्ट करते हो और जिसके रिजल्ट से हमें पता चलता है कि आपको किस पर्टिकुलर टॉपिक पे एम्फेसिस करना है। ओके, सो यू हैव टू वर्क मोर, you have to give more emphasis over that particular topic, so that is evaluated from the live test and quizzes. The next is structured courses. So आपको पता है कि CBSE का सिलेबस रिवाइज हो रहा है, होते रहता है, and when they are always they tend to change patterns, and that is very good. I appreciate that approach of CBSE, but that with the change of time they are also changing their way of teaching, their way of assessment. So whatever the changes they make, you don't have to worry about it, because at Unacademy will always update you with all the changes, with anything that is being revised by your board CBSE board. Okay, now the fourth thing that we'll be getting is unlimited access. So unlimited access to all the course content, be it on any device, any place. Okay, be it at any time, you can access all the course content. Okay, so that all the benefits you are getting, and the price starts at 888 rupees per month. So that's a good deal you are getting here. Okay, now as I told you, there will be live classes, and you will be there will be different, as you can see, there are different subjects live classes scheduled at different time, and that is for your convenience, so it won't be a problem for you to attend on any of the classes. मतलब ऐसा कोई टाइम नहीं होता आपके लिए कि हमने रात में क्लासेस रख दिया ऐसे कि आप अटेंड नहीं कर पा रहे, तो all the timings are very convenient for the students to attend. ओके, हम लोग ये भी ट्राई करते हैं कि आपके स्कूल टाइमिंग कंसाइड ना करें हमारे क्लासेस के टाइम के साथ, सो दैट्स व्हाट वी फॉलो. ओके, you would be having your classes from top educators. So I really apologize for the ये slide थोड़ी ऊपर से cut हो गई है. I don't know why this has happened, but the slide says that prepare with top educators. So you will be preparing with top educators. So here are the top, they have experience, they have an innovative techniques and creativity to bring out the best in you, to tell you all the concepts very clearly. Okay, so these are the top educators. Comprehensive syllabus, every time I tell you comprehensive syllabus, it stands for like none of the subject is not like कोई भी subject is ऐसा नहीं होता कि कम important हो, none of them is less important and none of them is more important. सब equally important होते हैं, सबका equal weightage होता है आपके board की results के लिए. ठीक है, and for your understanding as well, we should always not emphasis on result. I see it every time, result is not everything, but हाँ आपके understanding भी subjects में होनी चाहिए. ठीक है, so English plays a very important
रोल इन योर लाइफ एक्चुअली. ठीक है, हिंदी का भी रोल अपना होता है, सोशल साइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स दैट ओनली नॉट अफेक्ट्स योर रिजल्ट but also affect your personality. So we have given the courses in such a way. We have constructed a comprehensive syllabus so that you get it very easily. Next, students, you can download the Earn Academy Learning app from the Play Store on your device, and you can access it anytime. And it will be very mobile, and it would be very convenient for you to carry all your education materials along with you at any place. Okay. Next is you can join us on our Telegram app, and the channel link is given here. So I'll just mark it. So this is the channel link that has been given to you. So you can join us on this channel. You will be having updates with the videos. जितने भी हमारे educators होते हैं वहाँ पे update करते हैं अपने वीडियो के साथ. So you can access course content भी वहाँ आपको मिल जाते हैं. So all the updates you will be getting there on the Telegram channel. So you can just join it using this link. Moving on to the subscription part, as I already mentioned you, what are the perks you are getting with this subscription, what are the benefits that you will be getting. The pricing are listed as follows. You have EMI option on 6, 12 and 24 months, and you have a very good deal when you are going for a pack of larger duration. So plan of larger duration, you will receive this 36 months or 24 months. So you see, as you increase the plan duration, you get more discount as well. Okay, so it's up to you, and I would always suggest you to go for a longer duration plan so that you can have access to your contents, and it would be like for a longer duration, so you can prepare with your own pace, with your own speed. एक month कर लोगे तो जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, तो please don't go for that. So just go for a longer duration pack. EMI options available है, so it won't be a problem for your parents to pay the fees, because it's like just 800 per month, and see here we have 750 per month, so it's not a very big amount. Okay. And another thing I would like to mention here is this code Srijan, if you would be using, then you will be getting additional 10% off on any of the plans. So it's on the spot. So go for it, go for the plans, and get the subscription. That will be very good for you. Now students, let's start with today's lecture. So as I mentioned, आज का हमारा lecture spherical mirrors के image formation के बारे में होने वाला है. ठीक है. 10th में आप लोग को ये टॉपिक, जब 10th में मैक्सिमम ऑफ दी चीजें टॉपिक्स जो होती हैं वो आपको लिए नई होती हैं, जैसे कि ये रे डायग्राम्स. इससे पहले आपने लाइट पढ़ा है, 8th क्लास में पढ़ा है लाइट. ठीक है, उसमें था लाइट मेक्स अस सेंसेशन ऑफ साइट. ये डिफिनेशन आपने, लाइट मेक्स अस सी थिंग्स. ठीक है, लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट पाथ. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपने शायद पढ़ा होगा, बट इमेज फॉर्मेशन इज अ न्यू थिंग. ठीक है, तो कोई भी नई चीजें पढ़ने से पहले हमको कुछ प्री रिक्विजिट्स होती है, जो कि हमारा क्राइटेरिया होता है, जो हमको पता होना चाहिए. Prerequisites is basically the if we're talking about prerequisites in the context of today's lecture, so these are the things that you should be knowing before we start to go for the image formation and the ray diagrams. ठीक है, तो ये चीज कुछ prerequisites है. मैं पहले आपको prerequisites बताऊंगा और उसके बाद हम लोग एक्चुअल अपना इमेज फॉर्मेशन और रे डायग्राम्स देखना शुरू करेंगे. ठीक है students, now representation of images formed by spherical mirror using ray diagrams, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा. ठीक है, सबसे अब हम लोग प्रीरिक्विजिट्स देखने वाले हैं कि सबसे पहला प्रीरिक्विजिट हमारा क्या है. तो इट इज एक्स्ट्रापोलेटेड रे. ठीक है, व्हाट इज एक्स्ट्रापोलेटेड और एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ रे? बेसिकली ये होती है एक्सटेंडिंग द लाइट रेज. क्या होता है स्टूडेंट्स? अच्छा, मैं अभी यहाँ पे कोई डायग्राम मैंने इंक्लूड नहीं किया, बिकॉज आई जस्ट ड्रॉ इट नाउ एंड यू विल बी having it on the screen right now. Okay, so yes students, एक मान लो मैंने मिरर बनाया. अभी मैं मिरर इस फॉर्म का बना रहा हूँ. सॉरी, ये तो leave it. Okay, so consider this to be a mirror. ठीक है, now this is, as you know, this is the principal axis. अब क्या हो रही है, मान लो कोई लाइट रे हमको आ रही है. अभी मैं थोड़ा सा इसका इनका कलर चेंज कर देता हूँ. We have a blue color. Okay, so now the reflecting surface is this the outer is the reflecting surface. So can you tell me what type of mirror is this? Okay, this is a convex mirror. Why? Because जैसे कि हमने देखा था कि जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस केव लाइक होता है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस केव लाइक होता है, वो एक कॉनकेव मिरर होता है.
ऑलराइट। और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अब तो फिर दूसरा क्या हो गया, हमारा कॉन्वेक्स हो गया। तो ये केव लाइफ स्ट्रक्चर इधर है, लेकिन इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है नहीं, तो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड्स है। तो ये हमारा कौन सा मिरर हो गया बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। सो दिस इज आवर कॉन्वेक्स मिरर। ओके, नाउ यहाँ पे क्या होता है, किसी लाइट रे आ रही है, this is the incident light ray and it reflects like this। ठीक है, मिरर इमेज सॉरी इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स के लिए हमको चाहिए होता है कि जहां पे लाइट रेज इंटरसेक्ट करती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, वी टेक दैट पॉइंट टू बी द पॉइंट ऑफ इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मान लो एक यहाँ पे मैं सिंपली बना रहा हूँ, एक प्लेन मिरर है, इस पे मान लो ये इंसिडेंट हुई और ये रिफ्लेक्ट हुई। ठीक है, और एक और लाइट रे हमने इंसिडेंट करवाया और ये कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट की। ठीक है, तो ये जो पॉइंट बनेगा, ये जो पॉइंट बनेगा, ये पॉइंट हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। आई जस्ट इरेज इट टू अवॉइड एनी टाइप ऑफ कंफ्यूजन राइट नाउ। तो हम लोग क्योंकि देख रहे हैं एक्स्ट्रापोलेटेड रेज। ठीक है, हाँ, तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हम यहाँ देख रहे थे। ओके, कॉन्वेक्स मिरर, हाँ, तो कॉन्वेक्स मिरर यहाँ पे देख, तो ये हमारा रिफ्लेक्ट हो गया। लेकिन हमको क्या, अब ये रिफ्लेक्शन को हमें एक्चुअली, क्योंकि ये जो अभी हमने देखा था कि एक स्फीयर होता है और उसका यहाँ पे लाई करता है सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, और ये होता है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे होंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे इसका ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर आर हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमको इस रे को पीछे एक्सटेंड करना पड़ता है टू नो कि वेयर इमेज इज बीइंग फॉर्म्ड। ठीक है, क्योंकि इधर हमको कोई अभी ऐसे एक और लाइट रे आ जाते हैं, मान लो हम लोग ये कर देते हैं ये। ठीक है, तो ये कभी मीट नहीं करेंगी। जब रिफ्लेक्शन के बाद ये दिख रही है आपको कि ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, तो ये इसका मीट करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमें इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करना पड़ता है। तो दिस इज नोन एज द एक्स्ट्रापोलेटेड रे। एक्स्ट्रापोलेटेड रे मींस एक्सटेंडिंग, यहाँ के टर्म में आप देखो तो एक्सटेंडिंग बैकवर्ड्स, एक्सटेंडिंग बैकवर्ड्स। सो दिस इज द टर्म फॉर एक्स्ट्रापोलेटेड। तो ये चीजें हमें यूज करनी पड़ती हैं रे डायग्राम्स में, हमको रेस को पीछे प्रोड्यूस करना पड़ता है। ठीक है, प्रोड्यूसिंग रेस बैकवर्ड्स। तो ये एक्स्ट्रापोलेटेड रेस, ये टर्म आपको आता नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि रेस को पीछे प्रोड्यूस करना पड़ता है। एंड दिस इज मेनली इन दी दिस इज मेनली फॉर कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव में भी आता है, लेकिन कॉन्वेक्स में ज्यादातर हमको रे को पीछे की तरफ प्रोड्यूस करना पड़ता है, एक्स्ट्रापोलेटेड रेस यूज करनी पड़ती हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट द फर्स्ट प्रीरिक्विजिट, दैट इज एक्स्ट्रापोलेटेड रे। ओके, मूविंग ऑन, द सेकंड प्रीरिक्विजिट इज हैविंग नंबर ऑफ रेस। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, जिसको आप बस एक ध्यान रखो कि जब भी आपको एक इमेज चाहिए तो एटलीस्ट जो नंबर ऑफ रे होनी चाहिए दैट शुड बी इक्वल्स टू 2। ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे जो आपकी होनी चाहिए वो एटलीस्ट 2 होनी चाहिए। मान लो ये अपना ये एक रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, तो एक रिफ्लेक्टेड रे से आप कभी भी इमेज नहीं निकाल सकते। सो व्हाट यू नीड एटलीस्ट 2 रेस। तो आपकी मान लो एक और रे आएगी और ये कहीं पे इंटरसेक्ट करके, तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट ऑफ इमेज फॉर्मेशन इसको हम लोग कंसीडर करेंगे उस हिसाब से। जब हम लोग एक्चुअल इमेजेस देखेंगे, जो एक्चुअल डायग्राम्स देंगे, तो आपको और समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे बेसिक है कि नंबर ऑफ रे एटलीस्ट 2 होनी चाहिए, उससे भी ज्यादा हम लोग देख सकते हैं, बट वी वोंट गो फॉर मोर देन 2 एज फॉर नाउ। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला आपको, मैं सिलेबस के एक बाउंड्री के अंदर ही अभी फिलहाल रखना चाहता हूं। आप बाहर जाके पढ़ना चाहते हो, देयर इज नो हार्म इन दैट, इट विल बी वेरी गुड फॉर योर नॉलेज। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स इन दैट, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी, यू कैन जस्ट कमेंट इट हियर, सो आई विल गेट टू यू बैक ऑन दैट। ओके, so now the number of rays are 2, which is required to formation of image। तो ये सेकंड प्रीरिक्विजिट। पहली थी हमारी एक्स्ट्रा, मतलब हम एक्स्ट्रापोलेटेड रेज, यानी कि हमको रे को पीछे एक्सटेंड करना पड़ता है। सेकंड इज नंबर ऑफ रे मिनिमम शुड बी 2 फॉर इमेज फॉर्मेशन। The next prerequisite is convergence and divergence of ray। I really apologize for the fact that मैंने पिछले लेक्चर में आपको convergence और divergence of rays के बारे में नहीं बताया था, इसलिए मुझे आज इसको prerequisite में रखना पड़ा। So that I take that fault on me। लेकिन अभी हम लोग देख लेंगे, it's not very big term, easy चीज है। जैसे कि हम ये देखते हैं concave, sorry, so this is happening again। Okay, so this is, you say this is your
sorry, I'll just is only now we'll start it from here. Okay, so this is your say कॉनकेव लेंस. अच्छा कॉनकेव लेंस है तो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस साइड होगा? केव, जहां केव है वहां से, यानी कि दिस इनर साइड विल बी ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा. ठीक है, अब क्या होती है कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस की, जब भी कोई रे हमारी इस पे फॉल करती है, ठीक है, तो दिस मिरर टेंड टू कंसंट्रेट दीज रेज एट अ पॉइंट. ये हमारी इंसिडेंट रे है और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है. ठीक है, तो द कॉनकेव मिरर टेंड्स टू कंसंट्रेट दिस रिफ्लेक्टेड रे एट वन पॉइंट. ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी ये है कि कन्वर्जेंस मतलब कंसंट्रेट होना बेसिकली. तो जो हमारी ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये यहां से रिफ्लेक्ट किया तो इस पॉइंट से पास होगा. सो ये बेसिकली जो भी लाइट रेस के ऊपर फॉल करती है ना, इसको एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करता है. देयरफॉर दिस कॉनकेव मिरर इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर. Converging mirror. So concave mirror is also known as converging mirror. So on the contrary, अपना convex mirror होता है तो obviously वो diverging होगा, लेकिन divergence of rays होता क्या है वो देख लेते हैं. ठीक है, तो इसके लिए मैं इसको इरेज करता हूँ और फिर से मैं एक मिरर बनाऊंगा. इस टाइम ये होगी कॉन्वेक्स मिरर, तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एज वी नो आउटर साइड पे होगा. हाँ ओके प्लीज ओके. सो ठीक है, तो ये इसका रिफ्लेक्टिव सरफेस, तो यहाँ पे जो भी रेज फॉल करेंगे ना स्टूडेंट्स, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे. मतलब ये हमारी इंसिडेंट रे है तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे, ये ऐसे आई तो ये ऐसे हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे आएगा तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा. ये मैं इसको प्रॉपर डायग्राम से भी दिखाऊंगा आपको, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट था कि मैं आपको एक बार इस पूरे फिनोमेनन. तो अब यहाँ पे क्या है, ये सारी हमारी क्या है इंसिडेंट रे. तो इंसिडेंस रे जो है वो हमारी इस मिरर पे फॉर्म कर रही है, जो फॉल कर रही है, जो कि हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, और ये इसको बाहर की तरफ स्कैटर कर दे रहा है. तो पहला मिरर हमारा क्या कर रहा था कॉनकेव, उसको कंसंट्रेट कर रहा था एक पॉइंट पे. अभी क्या कर रहा है, उसको स्कैटर कर दे रहा है. तो जो स्कैटरिंग प्रॉपर्टी है उसको हम लोग डाइवर्जेंस ऑफ रे बोलते हैं. तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर. ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर इज आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर. यस सी, यहाँ मैंने डायग्राम इसका बना के रखा था. सो नाउ इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड फॉर यू. सो दिस, ये कौन सा मिरर है, अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी कि हमारा ये कॉनकेव मिरर है. कॉनकेव मिरर क्या कर रहा है, सारी जो इनकमिंग रेज है उसको एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर रहा है. ये एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर रहा है, तो ये हमारा पॉइंट, इसको हम लोग प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं. ये आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन ये पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, इसलिए कॉनकेव मिरर इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर. कन्वर्जिंग ओके. एंड नाउ द सेकंड इज दिस, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड से, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कौन सा मिरर है ये, कॉन्वेक्स. ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर है. अब कॉन्वेक्स मिरर क्या कर रहा है, जो भी लाइट रे फॉल, अब ये देखो ये रे कैसे इसको पीछे बैकवर्ड प्रोड्यूस किया गया ना बच्चों, इसी को हम लोग एक्स्ट्रापोलेटेड रेज कहते हैं. ठीक है, इसको हम लोग पीछे एक्सटेंड करना पड़ता है. तो क्योंकि ये क्या है, इसको आप स्फीयर कंप्लीट करोगे तो कुछ ऐसा आएगा, है ना. तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये थोड़ा सा छोटा बन गया एक्चुअली मेरे से. मैं इसको इरेज करके फिर से बनाता हूँ सो दैट इट विल बी मेड क्लियर टू यू. हाँ, तो अभी क्या है कि सी, हाँ, सो ये क्या है कि ये हम लोग बड़ा सा अभी यहाँ पे ट्राई करते हैं. ठीक है, तो इसका सेंटर है यहाँ पे होगा. ठीक है, इतना पास नहीं होता फोकस का सेंटर, बहुत डिस्टेंस, जितना ये डिस्टेंस उतना ये होना चाहिए, लेकिन मैं जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग बना रहा हूँ. तो ये सेंटर, तो बेसिकली क्या होगा कि हमको जो भी रेस को ऑब्जर्व करना है तो उसको पीछे एक्सटेंड करनी पड़ेगी. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो भी पैरेलल रेस आ रही हैं इसके प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये क्या हो रहा है, ये स्कैटर कर दे रहा है बाहर की तरफ. तो स्कैटर कर रहा है यानी कि ये क्या हो गया, डाइवर्जिंग मिरर. तो डाइवर्जिंग मिरर, तो डाइवर्ज, तो mirror. Okay, so this is the diverging mirror. So convex mirror is also known as a diverging mirror and concave is known as the converging. तो ये हमारा prerequisite नंबर 3 था. अब prerequisite नंबर 4 भी जो मैंने पिछले लेक्चर में बोला था कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा, इसलिए मैंने उधर नहीं किया था उस चीज को डिस्कस. सो यहाँ पे है प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ, जो हमने लास्ट टाइम नहीं किया था बच्चों. ठीक है, तो फिर से हम उसको देखते हैं यहाँ पे. तो ये हमारे पास दो डायग्राम्स आ गए हैं. पहला डायग्राम आप लोग को फिर से
रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड है, इनवर्ट है, यानी कि ये कॉनकेव मिरर होगा, केव के साइड पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। द स्ट्रक्चर इज केव लाइक, जहां ये केव लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें कि रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसलिए हम इसको कॉनकेव नहीं, केव है इसलिए कॉनकेव नहीं बोलते, या इट्स नॉट लाइक दैट, बट देन ये हमारा एक सिर्फ जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए हमको ये देखना है, तो ये हमारा कॉनकेव हो गया। ठीक है, तो कॉनकेव हो गया। तो अभी आप देखो क्या हो रहा है कि प्रिंसिपल फोकस ये पॉइंट है। ठीक है, इसका डेफिनेशन ये होता है कि व्हेन, अब आप ध्यान से सुनो, ठीक है, व्हेन द लाइट रेज फॉल्स ऑन अ कॉनकेव मिरर, द लाइट रेज आर कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन at one point, and this point is known as principal focus of concave mirror। हमारे लिए प्रिंसिपल फोकस का डेफिनेशन कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए डिफरेंट होता है, एकदम ही डिफरेंट नहीं होता है, लेकिन आप लोग समझेंगे क्यों डिफरेंट होता है वो मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या है कि when the rays parallel to principal axis fall on a concave mirror, after reflection these rays tend to converge at one point। ठीक है, तो converge at one point and this point is known as principal focus, which is denoted by capital letter F। okay, and the distance of this point F from the pole of this mirror। पोल के बारे में मैंने पिछले बार बताया था, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम पोल बोलते हैं। तो इस पोल से जो इसका डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस आपको F दिख रही है, तो दिस F is your focal length। ठीक है, फोकल लेंथ की डेफिनेशन आपकी कॉन्वेक्स के लिए भी सेम रहती है, लेकिन हम लोग अगर देखा जाए कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या है कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो लाइट्स हैं वो स्कैटर हो जाती हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। यहाँ पे क्या होता है प्रिंसिपल फोकस का डेफिनेशन कि व्हेन लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस of a convex mirror, after reflection they appear to be diverging from a point and it is known as principal focus। आप यहाँ पे देखो, ये जो ये है, ये सारी रे को प्रोड्यूस करने पे ऐसा अपीयर होना है ना कि यहाँ से डाइवर्ज हो रही है। डाइवर्ज मतलब स्कैटर हो रही है। तो देखो ना, ये स्कैटर होते हुए दिख रही है बाहर की तरफ, ये देखो, ये सारी स्कैटर हो रही है बाहर की तरफ। तो द डेफिनेशन इज व्हेन लाइट रे फॉल ऑन अ कॉन्वेक्स मिरर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन the reflected ray appears to be diverging from a point and this point is known as principal focus of a convex mirror। और इसमें भी जो डिस्टेंस होती है प्रिंसिपल फोकस की यहाँ से पोल से, इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ और डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर f से। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर r से डिनोट करते हैं और इसको f से करते हैं, और एक रिलेशन होता है इन दोनों के बीच कि f इक्वल्स टू r बाई 2, या इसको हम ऐसे भी बोलते हैं कि r इक्वल्स टू 2f। मतलब कि ये जो सेंटर ऑफ ये जो डिस्टेंस होती है बेसिकली ये भी f के बराबर ही होती है, लेकिन हम इसको ऐसा f कंसिडर नहीं करते हैं। तो इस पूरे डिस्टेंस को हम लोग r बोलते हैं, और r जो होती है वो डबल होती है फोकल लेंथ की। ठीक है, किसी भी मिरर के लिए, स्फेरिकल मिरर के लिए। तो दैट्स द कांसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। अब हमको लगता है कि हम रे डायग्राम्स के बारे में पढ़ सकते हैं, और उसमें ये जहां जहां प्रीरिक्विजिट आएगा मैं फिर से आपको याद दिलाते रहूंगा उस बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हमको देखना होगा रूल्स ऑफ रे डायग्राम, कि रूल्स क्या फॉलो होते हैं रे डायग्राम बनाने के लिए। ठीक है, तो रूल्स हम देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स में इमेज फॉर्मेशन कैसे हो सकता है, बेसिकली कैसे होता है। ओके, नाउ द फर्स्ट रूल नंबर 1, ये आपको एग्जैक्ट आपकी टेक्स्ट बुक की लाइन से, इसलिए मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, लेकिन एक तरह से मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आपकी टेक्स्ट बुक में बहुत इंफॉर्मेशन होती है, उसको आप, वैसे मैंने क्या आपको स्ट्रेटेजी वीडियो में बोला था कि रीड बिटवीन द लाइंस, तो यू विल गेट एवरीथिंग इन योर टेक्स्ट बुक। ठीक है, बस उसको आप यहाँ पे हम आपको अच्छे से समझा देते हैं सो दैट इट वुड बी द कंसेप्ट बिकम्स मोर क्लियर टू यू। अब ये जो स्टेटमेंट है, अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस after reflection will pass through the principal focus in case of a concave mirror or appear to diverge from principal focus in case of convex mirror। यहाँ पे बच्चों दो प्रीरिक्विजिट्स आ रहे हैं। पहला तो है एक्स्ट्रापोलेटेड रे का कॉन्वेक्स के केस में, क्योंकि यहाँ पे वर्ड आ रहा है अपीयर मतलब वो एक्चुअली नहीं हो रहा है, वो ऐसा अपीयर हो रहा है कि वो किसी पॉइंट से डाइवर्ज हो रहा है। तो अपीयर हो रहा है यानी कि यहाँ पे एक्स्ट्रापोलेटेड रे का कंसेप्ट है, मतलब कि हमने रे को पीछे एक्सटेंड किया है बैकवर्ड्स। ओके, the next prerequisite that is coming here is about principal focus। ठीक है, and also we are getting a divergence and convergence prerequisite। तो देखो आप सब यहाँ पे हमको 3 तो यहीं पे मिल गए, 4 हमने prerequisite देखे। ठीक है, but anyway we'll just discuss this rule number 1। so हम लोग थोड़ा सा इसको करते हैं। अब ये क्या है, ठीक है,
अब ये मान लो हम लोग अभी ले रहे हैं अपना ये कॉनकेव मिरर, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनर साइड होगी, तो ये हमारी पॉलिश सरफेस इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी पॉलिश सरफेस हो गई, यहाँ पे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस बन गई, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ बनेगा और इसके हाफ डिस्टेंस पे हम लोग प्रिंसिपल फोकस रखेंगे, सिंस वी नो दैट r इक्वल्स टू 2f, सो ये डिस्टेंस इसकी डबल होनी चाहिए, ये जो डिस्टेंस है ये हमारी, ये इस डिस्टेंस की डबल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो हमें पता है, अभी हमने जस्ट लास्ट स्लाइड में देखा कि कैसे वो होता है, इसका रिलेशन कैसे हम लोग स्टैब्लिश करते हैं दोनों में, ठीक है। तो ये जो पहला लॉ हमारा बोलता है, वो बोलता है कि जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस ये है ना। स्टूडेंट्स एक और चीज मैं बोलना चाहता हूं कि ये थोड़ा सा स्पेलिंग में कंफ्यूजन है, आई हैव आल्सो गॉन थ्रू विकिपीडिया डिक्शनरी, एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, ये प्रिंसिपल एक्सिस की ये स्पेलिंग है, द सेम इज विद सेंटर ऑफ कर्वेचर, सो आई वुड सजेस्ट यू इन द एग्जामिनेशन यूज द एनसीईआरटी टर्म्स, ठीक है। ओके, सो वैसे अगर आप लोग इंग्लिश के हिसाब से देखो तो द प्रिंसिपल एक्सिस हियर वी आर यूजिंग शुड बी ऑफ डिफरेंट स्पेलिंग, बट आप एनसीईआरटी के टर्म्स यूज करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है, अरे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अरे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये पैरेलल हो गई इसके, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, देखो ये गड़बड़ा दी मैंने, गड़बड़ कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, गलती हो जाती है यार ये, हाँ कैलिब्रेशन तो मैंने ठीक कर दिया है, पिछले वीडियो में तो कैलिब्रेशन कितनी प्रॉब्लम हो रही थी ना कि क्या बताऊं मैं इट यू नो इट मेक्स मी फ्रस्ट्रेटेड, लाइक ऐसी प्रॉब्लम्स ना फिर से हो रहा, ओके नो नो इश्यूज, सो विल जस्ट हैव इट लाइक दिस। अभी मैं इसके आपको डायग्राम्स दिखाऊंगा तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे हम फिर से बनाते हैं, नहीं बन रही, तो ठीक है, हम एक काम करते हैं, फोकस को शिफ्ट कर देते हैं, है ना। थोड़ा जुगाड़ लगाना पड़ता है कभी कभी, एग्जाम्स में भी ऐसा होता है, पता है क्या, एग्जाम्स में ऐसा होता है रे डायग्राम करके आपका फोकस से पास नहीं करता है, जस्ट जहां से चाहते हो ना वहां पे नहीं होता, तो पहले कर दो, बाद में उन चीज पॉइंट्स को लोकेट करते रहना, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट, जुगाड़ कंसेप्ट में मत लगाना, ठीक है। जुगाड़ सिर्फ अपने तब लगाना जब आप एग्जाम में एकदम फंस जाओ, आपको पता है कि कंसेप्ट क्या है, लेकिन आपको कभी कभी होता है ना ज्योमेट्रिकली चीजें नहीं आती हैं, आप ये प्रैक्टिकली वो स्केल आप उतने परफेक्टली नहीं ड्रॉ कर सकते हो ना, जो कि ये होता है, और इट्स अबाउट साइंस, तो जो भी मैक्सिमम चीज होती है वो हम असम्पशन पे लेके चलते हैं, तो कोई बैठ के ना उस चीज को मेजर नहीं करता, तो कभी कभी थोड़ा प्लस माइनस जिसको हम बोलते हैं एरर्स होते हैं, तो यहाँ पे भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने फोकस, चलो गेटिंग बैक टू पॉइंट, तो फोकस, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये फोकस से पास करेगी, ऐसा बोलता है फर्स्ट लॉ, और फर्स्ट रूल एक्चुअली, सॉरी लॉ नहीं है ये, रूल है बस। तो अब हम लोग कॉन्वेक्स का एग्जांपल देख रहे हैं, तो कॉन्वेक्स के ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, मान लेते हैं हम यहाँ पे फोकस है, और यहाँ पे हमारा, इसको थोड़ा सा और प्रोड्यूस कर देते हैं, यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो यहाँ पे ये बोलता है कि अ लाइट अगेन लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। तो यहाँ पे क्या है कि हमारी लाइट रे जो है ये पैरेलल आई, ठीक है। अब ये कैसी होती है, डाइवर्जिंग नेचर की होती है, तो ये हम डाइवर्ज कर देगा बाहर की तरफ, तो फोकस का काम ही कहाँ है, नहीं, इसको जब हम प्रोड्यूस बैक करेंगे, ठीक है, ये लाइट रे बहुत सॉलिड हो गई, एक्चुअली सॉलिड नहीं, हमें थोड़ा सा डॉटेड, जब भी हम लोग एक्स्ट्रापोलेटेड रेज रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, हरदम डॉटेड लाइन यूज करना, कभी भी डोंट यूज अ हाइलाइटेड लाइन और सॉलिड लाइन, सो ठीक है। तो ये हमारी लाइन आ गई, तो क्या बोल रहा है कि अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम अ प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, तो ये कॉन्वेक्स मिरर के केस में हम देख रहे हैं कि इट अपीयर्स टू बी डाइवर्जिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, तो इसको हम लोग जब पीछे प्रोड्यूस किए तो ये प्रिंसिपल फोकस पे आके इंटरसेक्ट कर गया प्रिंसिपल एक्सिस से, ठीक है। तो ये दिस इज द फर्स्ट रूल। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि थोड़ा डायग्राम देखेंगे इसका, सो अच्छा डायग्राम, मतलब इससे तो बहुत बेटर है जो मैंने बनाया था,
ठीक है। सो ये हमारे पास डायग्राम आ गया कॉनकेव के लिए और कॉन्वेक्स के लिए। तो अभी मैं इसको आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं अगर क्लियर नहीं हुआ हो। एंड दिस आई विल बी डूइंग विद एवरी रूल एंड एवरी इमेज फॉर्मेशन रूल, कि पहले मैं अपना वो जो अजीब सा फोटो डायग्राम बनाता हूं वो बनाऊंगा आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, एंड देन एक अच्छे डायग्राम पे आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। तो ये हमारी पैरेलल रे आ गई। किसके पैरेलल है? इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। तो ये हमारी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस इसके पैरेलल रे आ गई और रिफ्लेक्ट हो गई। रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कहां से पास कर रही है? इट्स पासिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, एंड दिस पॉइंट इज नोन एज द प्रिंसिपल फोकस। तो ये हमारा पहला रूल होता है कि अब रूल को हम लोग एकदम समरी में, और फिर हम लोग सेकंड ये भी देख लेते हैं कि जो रे आती है इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये इसको अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो ये एफ पे प्रिंसिपल फोकस पे आके it appears to be coming from, or it's appear to be diverging from principal focus. बिफोर मूविंग ऑन, आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन बनी हुई है। उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? एनी आइडिया? सो दिस अगेन प्रीवियस वीडियो में जैसे मैंने बताया था, इट्स नॉर्मल, अ नॉर्मल टू द सरफेस। सेंटर ऑफ कर्वेचर से हरदम हम नॉर्मल बनाते हैं। ये हरदम ध्यान रखना कि रे डायग्राम्स में सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल लिया जाता है, एंड दैट इज व्हाई यहाँ पे आई और आर लिखा गया है। ये एंगल आई और ये एंगल आर है, एंड देन एंगल आई विल बी इक्वल्स टू एंगल आर। ओके, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इन जस्ट वन केस वी डोंट कंसिडर सेंटर ऑफ लाइन थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एज नॉर्मल, तो वो हम इमेज फॉर्मेशन में देखेंगे। बट यहाँ पे आप ये बस ये समझ लो कि जो भी हम लोग नॉर्मल लेते हैं वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के रेफरेंस से लेते हैं। द लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एक्ट्स एज अ नॉर्मल व्हेन वी आर कंसीडरिंग द इमेज फॉर्मेशन बाय अ स्फेरिकल मिरर। ओके, सो यहाँ कॉनकेव का हमने देख लिया और यहाँ पे कॉन्वेक्स का भी देख लिया। तो ये हमारा रूल नंबर 1 हो गया। रूल नंबर 1 सीधा एकदम in the very in a very summarized way, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से पास करेगी। दैट्स इट। अभी आप अपीयर और वो सब भी छोड़ो, अभी हमें बेसिक पढ़ रहे हैं ना। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे आई फोकस से पास करेगी। दैट्स द रूल नंबर 1। कॉन्वेक्स की में आपको उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करके आपको फोकस से दिखाना पड़ेगा पास होते हुए। ठीक है, मतलब फोकस पे आ रही है वो रिफ्लेक्टेड रे। दैट then and only then you will be able to form the images. Okay, so that's the rule number 1. Moving to rule number 2 quickly. Rule number 2 is a ray passing through principal focus of a concave mirror directed towards principal focus. Sorry, again I will repeat, a ray passing through the principal focus of a concave mirror, or a ray which is directed towards the principal focus of a convex mirror after reflection emerges parallel to the principal axis. जो आपने मीम्स में देखा होगा ना अक्षय कुमार का, ऐसे ये वाला करना, इधर का इधर, इधर का इधर। सेम रूल 1 2 को ऐसे करना है। रूल 1 कहता था प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया तो फोकस से पास करेगा। रूल 2 ये कहता है कि अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास कर रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है। और वही कॉन्वेक्स के टर्म में वही, ये कॉन्वेक्स में क्या होता है कि पहले तो मिरर, आप समझो मेरी बात, ये मिरर है हमारा, ठीक है, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो जब लाइट आई तो मिरर के पास थोड़े करेगी, रिफ्रैक्शन यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो जस्ट यहाँ से बाउंस बैक कर जाएगा। तो फोकस तक पहुंचने का कोई चांस ही नहीं है। इसका मतलब है कि इट अपियर्स टू बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स फोकस। ठीक है। तो अब हम लोग इसको एक बार मेरे डायग्राम इससे देखेंगे। ओके, सो पहला हम लोग कॉनकेव का लेते हैं। ठीक है, बहुत ही, ये हमारा कॉनकेव सिंगल लाइन से ड्रॉ करूं तो आप लोग को समझ आएगा। ठीक है, सिंगल लाइन, वो डबल बनाने में ना वो मिरर का शेप ही अजीब सा हो जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होगी। अब क्या करना है, हमको क्या बताना है, ये हमारा मान लो फोकस है। ठीक है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। हम ये बोल रहे हैं कि अगर हमारी जो इंसिडेंट रे है वो फोकस से पास करेगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल। ये पैरेलल नहीं जा रहा है, मैं इसको फिर से बनाता हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत एक्यूरेट होना पड़ेगा ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये पैरेलल नहीं आ रही है, इसको मैं ठीक करूंगा वापस से, एंड प्रीफरेबली आई विल बी चेंजिंग माय पेन। ओके, सो अगर कोई रे इट्स इंसिडेंट थ्रू प्रिंसिपल फोकस, इट विल गो पैरेलल टू, एक्चुअली मैं इसका डायग्राम ही दिखा देता हूँ। ठीक है, इसके फिगर में आप लोगों को फिर कंफ्यूजन होगा, तो इसका जब डायग्राम हमारे पास अवेलेबल है तो हम उसी से स्टडी कर लेते हैं। हाँ सर, अरे बाप रे,
सर ने स्किल्स दिखा दी अपने। ठीक है। सो रूल नंबर 2, देखो यहाँ पे ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये इंसिडेंट रे हमारी, अभी यहाँ पे तो ब्लू कलर से रेज है तो रेड कलर ले लेते हैं समझाने के लिए आपको। ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे है, ये आपकी फोकस से पास कर रही है, आप देखो फोकस से पास कर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगेन नॉर्मल है, अभी हमको नॉर्मल से कोई मतलब ज्यादा है नहीं क्योंकि हम रूल नंबर 2 जो देख रहे हैं इसमें अभी इसका काम नहीं है। तो रूल जो रे इंसिडेंट रे है ये फोकस से पास कर रही है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकल जाएगी, जस्ट अपोजिट ऑफ रूल नंबर 1। सेकंड इज कि अगर ये रे देखो इनकमिंग रे है, इसको प्रोड्यूस करने पे ये दिख रही है कि ये फोकस के टुवर्ड्स डायरेक्टेड है, तो वे फिर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। ठीक है, तो ये रूल नंबर 2 है, जस्ट अपोजिट टू रूल नंबर 1। और इसके टोटल 4 रूल्स हैं, उसके बाद फिर हम एक बार रिवीजन कर लेंगे फटाक से कि हमने क्या पढ़ा। रूल नंबर 3, a ray passing through center of curvature of a concave mirror or directed in the direction of center of curvature of a convex mirror after reflection is reflected back along the same path। ये क्या होता है ना कि ये हम लोग ऐसे ही रट लेते हैं स्टूडेंट्स की, सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे गई तो सेम पाथ ट्रेस कर लेगी रे, क्यों करती है कोई बता सकता है? वैसे अभी यहाँ पे हम लोग क्योंकि अभी ये एक लाइव सेशन बेसिकली नहीं है तो यहाँ पे इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है, तो मैं ही बता देता हूँ आपको। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने देखा था एक नॉर्मल, इसको मैं अभी हाँ ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इंसिडेंट, ओके नाउ सो यहाँ क्या थी हमारी इंसिडेंट रे थी एंड रिफ्लेक्टेड रे थी, ये था हमारा एंगल आई और ये था हमारा एंगल आर। तो ये एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर था, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। तो ये एंगल आई क्या था? द एंगल इंसिडेंट रे इज मेकिंग विद द नॉर्मल टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये नॉर्मल से जितना एंगल बनाता है वो एंगल आई। अब यहाँ पे आ जाओ ये केस में, तो यहाँ पे जब हमारा ये देखो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही हमारी रे पास कर रही है, और मैंने क्या बोला था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम नॉर्मल लेते हैं। ठीक है, मतलब नॉर्मल के पे ही हम लोग ने रे डाल दी, तो अभी एंगल कितना बना इंसिडेंट रे का नॉर्मल से? 0। तो बेसिकली रिफ्लेक्ट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा? 0। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा, इसलिए विदाउट एनी चेंज ऑफ एंगल वो सीधे उसी पाथ में, मतलब कि नॉर्मल से 0 डिग्री पे ही रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है। एंड दैट्स द ओनली रीजन दैट व्हेन अ लाइट रे passes through center of curvature it reflects back in the same direction। और convex के टर्म में वही होता है कि if the light is directed towards center of curvature then it follows the same path of reflection। क्योंकि center of curvature से हम normal draw करते हैं और normal से incidence ray का जब angle 0 है तो obviously reflected ray will also have an angle 0 angle with the normal। So that is the reason of rule 3। okay, now we'll move on to rule 4, that we have a ray incident obliquely to principal axis towards a pole P on the concave mirror reflected obliquely, and incident ray and reflected ray follow the laws of reflection at point of incident point P making equal angles at principal axis। इस लॉ से आप प्लीज ये मत इंटरप्ट करना कि पिछले जो हम लोग 3 रूल्स देखे उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं होते, नहीं ऐसा नहीं है। बट यहाँ पे क्या होता है, हम लोग एकदम विदाउट एनी कंसिडरिंग एनी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस हम डायरेक्टली यहाँ देखते हैं कि अगर कॉन्केव पे ये रे आई, पोल पे अगर कोई रे आती है तो वो उसका जो हम लोग ये प्रिंसिपल एक्सिस है वो नॉर्मल हो जाता है, और फिर हम लोग एंगल आई इक्वल टू एंगल आर करके इसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जो भी एंगल यहाँ पे इंसिडेंट होता है उसका रिफ्लेक्शन। तो दिस फॉलो सिंपल रिफ्लेक्शन। सेम फॉर कॉन्वेक्स मिरर, यहाँ पे कोई भी प्रोड्यूसिंग या एक्स्ट्रापोलेटेड रेज नहीं होते हैं। यहाँ पे जैसे इसमें पोल पे जैसे इसने स्ट्राइक किया वैसे ही ये सेम पाथ को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो दैट्स द रूल नंबर 4। एंड ओके, सो एज आई टोल्ड यू देयर वर 4 रूल्स, एंड 4 रूल्स को हम जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं। पहला रूल क्या होता है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है इंसिडेंट रे तो कहां से पास कर जाएगी? फोकस से। सेकंड रूल इज जस्ट अपोजिट ऑफ द फर्स्ट रूल कि अगर फोकस से पास कर रही है इंसिडेंट रे तो रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। द थर्ड रूल सेज दैट इफ अ इंसिडेंट रे इज along center of curvature or the incident ray passes through center of curvature or appears to be directed towards center of curvature, then the reflected ray then the light reflects in the same path, following the same path, there is no change। okay, and the fourth law says that if the light ray is incident on the pole then taking principal axis to be the normal, it follows the rule of reflection and angle making angle of incidence equals to angle of reflection। तो ये 4 रूल्स होते हैं। अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। सबसे पहले कॉन्केव मिरर का, और सबसे ज्यादा केसेस होते हैं कॉन्केव मिरर पे। आई गेस हमारे पास 1 2 3 4
6 केसेस हैं, एक्चुअली 6 केसेस हैं कॉनकेव मिरर के, और 2 केसेस होते हैं कॉन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशन के। केसेस क्यों बनते हैं यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि ये हमारा, मान लो ये हमारा मिरर है और ये हमारे पॉइंट्स हैं, मतलब ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो बेसिकली हम ऑब्जेक्ट को पहले इंफिनिटी पे रखते हैं, ठीक है, फिर कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर रखते हैं, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं, फिर फोकस पे रखते हैं, और फिर फोकस और पोल के बीच में रखते हैं। तो ये हमारे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 केसेस हो गए कॉनकेव मिरर के लिए। आई एम सॉरी। तो ये 6 केसेस हो गए हमारे कॉनकेव मिरर के लिए, और इन पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग इमेज का प्रॉपर्टीज देखते हैं। अब इमेज की प्रॉपर्टीज 3 होती हैं। पहली होती है पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है, सेकंड इज द मैग्निफिकेशन, एंड थर्ड इज द नेचर ऑफ इमेज। द पोजीशन ऑफ इमेज मतलब कि इमेज जो फॉर्म हो रही है वो कहां हो रही है, ठीक है, इन्हीं पॉइंट्स में बीच में हो रही है, बिहाइंड द मिरर हो रही है, ठीक है। सेकंड इज द नेचर, सेकंड इज मैग्निफिकेशन, तो क्या जो इमेज फॉर्म हुई है वो सेम साइज की है, या फिर साइज में ऑब्जेक्ट से बड़ी हो गई है, या फिर साइज में ऑब्जेक्ट से छोटी हो गई है। तो जब बड़ी हो जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं मैग्निफाइड इमेज, और अगर छोटी हो जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिमिनिश्ड इमेज, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे बाद में। और जो थर्ड होता है वो नेचर ऑफ इमेज होता है। तो नेचर ऑफ इमेज दो होते हैं पर्टिकुलरली, एक होता है वर्चुअल इमेज और एक होती है रियल इमेज। अगर इमेज मिरर के पहले फॉर्म कर जा रही है बच्चों, तो वो होती है आपकी रियल इमेज। रियल इमेज आप अपने आईज से नहीं देख सकते हो, रियल इमेज कैन ओनली बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, ठीक है। जब एक इमेज रियल होती है तो इट इज ऑलवेज एन इन्वर्टेड इमेज। तो रियल एंड इन्वर्टेड ये टर्म साथ में लेके चलो अभी के लिए, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड क्या होता है, कई बार न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल्स हम जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उससे हमें ये पता चलता है कि अभी हम लोग साइन कन्वेंशन देख लेंगे तो और अच्छे से पता चलेगा कि इमेज की हाइट निगेटिव है। इमेज की हाइट निगेटिव है, इसका मतलब हमको पता चलता है कि वो एक इन्वर्टेड इमेज है। इन्वर्टेड इमेज है, अगर इमेज इन्वर्टेड है तो इन्वर्टेड इमेज है तो मतलब कि वो एक रियल इमेज होगी। तो ऐसे हम लोग वो करते हैं। एंड द सेकंड जो हम लोग बात कर रहे थे नेचर ऑफ इमेज, पहले तो हम आ गए रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब बच्चों अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इन्वर्टेड इमेज इसकी ऐसे बनेगी, दिस इज ऑफ द सेम साइज, तो मैग्निफिकेशन इसका 0 है, बेसिकली इट इज ऑफ द सेम साइज एज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये इन्वर्टेड है, रियल इमेज है, और इसका भी लोकेशन तो हम लोग नहीं देख सकते, पोजीशन ऑफ, तो वो हम लोग बाद में ही देखेंगे। और एक होती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो पहले हमने देख लिया real and inverted, and the next is virtual and erect. Now so जो भी हमारी इमेजेस होती हैं, जो भी हमारी इमेजेस इसके मिरर के पीछे फॉर्म होती हैं, बेसिकली बिहाइंड द मिरर, वो वर्चुअल इमेजेस होती हैं और वही हम देख सकते हैं, ठीक है। और जो वर्चुअल इमेजेस होती है वो इरेक्ट होती है, मतलब कि अगर ये आपका ऑब्जेक्ट इस शेप में है तो आपकी इमेज भी इसी तरह से आएगी। सो दिस इज द इरेक्ट नेचर ऑफ द इमेज, एंड वर्चुअल मींस इट्स बीइंग फॉर्म बिहाइंड द मिरर एंड इट इज विजिबल बाय द ह्यूमन आई। तो जैसे आप प्लेन मिरर में जो इमेज देखते हो, व्हाट टाइप ऑफ इमेज इट इज अ वर्चुअल इमेज, ओके। नाउ अब हम लोग देखते हैं पहला, अब हमारे पास केसेस होते हैं। सबसे पहले मैंने बोला ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, इन्फिनिटी पे होगा। तो ये हमारा डायग्राम है। यहाँ पे जो मैंने इमेज के आगे स्पेस छोड़ा है ना, यहाँ पे हम लोग तीनों प्रॉपर्टी लिखेंगे उसकी, ठीक है। और तीनों प्रॉपर्टी मैं फिर से यहाँ पे रिकॉल करता हूँ। जो पहली प्रॉपर्टी होती है वो होती है पोजीशन, सेकेंड प्रॉपर्टी होती है इसकी मैग्निफिकेशन। अच्छा, पोजीशन किस चीज की, पोजीशन ऑफ इमेज, सॉरी आई वुड नॉट राइट इन दैट सेक्शन, ओके। सो मुझे लगता है वहां पे मेरी खोपड़ी आ रही होगी, इसलिए यहाँ पे लिखते हैं। सो फर्स्ट इज योर पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। सेकंड क्या था, सेकंड क्या था, मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। मैग्निफिकेशन, मेरी राइटिंग समझ में नहीं आती तो प्लीज कमेंट्स में डाल देना, मैं कर्सिव लिखना बंद कर दूंगा उस दिन से। सो मैग्निफिकेशन। द थर्ड इज आपका जो बोलता है आपका नेचर ऑफ इमेज, समझ में आएगी सबको, ठीक है। सो हमारा हो गया पोजीशन ऑफ इमेज, मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज हो गया और नेचर ऑफ इमेज हो गया, ठीक है। तो ये तीन। अब देखो, अब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है। लेट्स रिकॉल आवर प्रीरिक्विजिट्स। कितने रेज जरूरत होते हैं, 2 रेज होते हैं। यहाँ पे हम लोग 3 रेज ले रहे हैं, ठीक है। तो जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस। तो देखो क्या हो रहा है, पहली रे यहाँ से
यहां से निकली, ठीक है। अब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, पहले रूल को फॉलो करते हुए फोकस से पास कर जाएगी, तो देखो यहाँ फोकस से पास कर गई। सेकंड इसके हम लोग ये ए बी एक्चुअली हमारा ऑब्जेक्ट है, ए बी, ठीक है। तो ए है, बी ए है, तो हम लोग दोनों पॉइंट्स इसका ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी पे है ऑब्जेक्ट बेसिकली, इसलिए देयर विल बी मेनी रेज दैट वुड बी कमिंग। तो यहाँ बी से, अब इसके बाद जो हम लोग केसेस लेंगे तो सिर्फ एक पॉइंट से ही केसेस, एक पॉइंट से ही रेज लेते हैं। यहाँ पे हम लोग दो, हर एक ऑब्जेक्ट के हर पोजीशन से रे ले रहे हैं, मतलब मिडिल से भी ले रहे हैं, टॉप से ले रहे हैं और बॉटम से ले रहे हैं। तो यहाँ देखो बी से जो रे निकली ये हमारी फिर से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो फोकस पे चली जाएगी। और बीच वाली जो रे है, मिडिल वाली रे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास कर रही है, तो यूजिंग द थर्ड रूल हमारा क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही ये पास कर जाएगा। तो बेसिकली जहां पे ये रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट की, मैंने बताया था बच्चों, जहां पे इंटरसेक्ट करती है वही इमेज का पॉइंट होता है। तो ये देखो इंटरसेक्ट की यहाँ पे। अब देखो सबसे पहला पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज कहां बनी है बच्चों, एट फोकस, एट फोकस, ठीक है। पोजीशन का इमेज की एट फोकस। सेकंड हमारा मैग्निफिकेशन क्या है, वेरी हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश मैंने क्या बोला था, जब छोटी हो जाती है तो हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, डिमिनिश्ड पॉइंट साइज्ड, ओके। एंड द थर्ड इज आवर नेचर ऑफ इमेज। तो देख रहे हो कि अभी यहाँ पे इरेक्ट सॉरी इन्वर्टेड तो हम लोग देख नहीं सकते हैं, बट देन सिंस द इमेज इज बीइंग फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो ये रियल इमेज होगी, तो रियल एंड इन्वर्टेड, yes, I'm sorry, actually I was getting, yeah, sorry, so real and inverted. So this is the three observation of the image when the object is at infinity. अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को थोड़ा और क्लोज लाएंगे मिरर के, तो बियॉन्ड सी रखेंगे। तो बियॉन्ड सी अब हम लोग रख दिए हैं, तो आप देख सकते हो ये यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है। अभी भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से दूर है, इसलिए फिर से हम यहाँ से हर डायरेक्शन से रे ले रहे हैं। पहली रे जो हमारी है वो क्या है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, देख लो आप, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये कहां से निकल जाएगी, हमारी फोकस से निकल जाएगी। तो ये देखो यहां से निकल गई। एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, जब भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, आप चाहो तो इस वीडियो को पॉज करो उसी पॉइंट पे और इस रे डायग्राम को प्रैक्टिस करो एक पेपर पे, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा, स्केल से पेंसिल स्केल ले लो, कुछ डिस्टेंसेस लो, ऑलवेज ट्राई की फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस होता है वो आप मेंटेन रखो। मतलब अगर आप इस चीज को 2 सेंटीमीटर अगर ले रहे हो तो प्लीज इसको भी 4 सेंटीमीटर ही लेना, ठीक है। ये रिलेशन जो होता है ना R=2F, प्लीज इसको आप लोग डायग्राम्स में मेंटेन रखना, नहीं तो नहीं बनती है इमेज, फिर प्रॉब्लम आने लगती है, ठीक है। नाउ अभी ये रे आई तो ये फोकस से, सेकंड रे हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, इट विल फॉलो द सेम पाथ, तो रिफ्लेक्ट हो गई। अब ये इंटरसेक्ट कर गई यहाँ पे, ठीक है, ये इंटरसेक्ट कर गई यहाँ पे, और जो सेकंड आपकी जो ये हमने ये एक रे ली थी, ये रिफ्लेक्ट हो गई है, तो ये यहीं पे इंटरसेक्ट कर जा रही है फोकस पे, ठीक है। तो वी वुडंट कंसीडर दिस, वी विल कंसीडर दिस इमेज, क्योंकि यहाँ पे हमको इमेज दिख रही है। इमेज का जो अगर ए बी ऑब्जेक्ट है ना बच्चों, तो उसका जो इमेज आता है वो ए डैश बी डैश हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो इमेज ए डैश बी डैश बनी है ये कैसी है, आपको दिख रही है, एरो ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है ऑब्जेक्ट में और एरो नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है, यानी कि ये इन्वर्टेड इमेज है, यानी कि, और मिरर के सामने फॉर्म हुई है तो रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन अभी पहले हम क्या लिखना था, पोजीशन ऑफ इमेज, तो पोजीशन ऑफ इमेज कहां बना है, तो पहला हो गया बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बना। सेकंड हमारा जो होता है कि मैग्निफिकेशन क्या है, तो इट इज डिमिनिश्ड, सिर्फ डिमिनिश्ड लिख दो आप, हाईली डिमिनिश्ड इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो कि इट इज जस्ट डिमिनिश्ड, स्मॉलर इन साइज, एंड द नेचर ऑफ दिस इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। Okay, so the nature of image is real and inverted. Okay, all right. So now real and inverted image हो गई। अब ये हमारा beyond C का देख लिया हमने। The third case is at center of curvature. At center of curvature आप देख लो, पहली जो लाइट रे है वो कैसे फिर से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और ये फोकस से होके पास हो जा रही है, ठीक है। ये हमारी फोकस से होके पास हो गई। जो सेकेंड रे है हमारी वो हमने लिया है, वो फोकस से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है तो कहां से निकल जाएगी, सेकेंड लॉ से हमारी ये पास कर जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो बेसिकली यहाँ मीट कर रही है, यहाँ पे मीट कर रही है, यहाँ मीट कर रही है। तो जैसे कि जो पॉइंट होता है ना, जैसे कि आप ये देखो, ठीक है, इस मिरर को और हम थोड़ा एक्सटेंड करते, ये हो गया, हाँ, ये एक पॉइंट हमारा ये मिला है, और एक हमने क्या किया है कि एक लाइट रे हमने फोकस से
पास कराई है, तो वो इसमें तो ये जो पॉइंट मिला ना, तो हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस से बच्चों देखते हैं। और ये जैसे कि क्योंकि ये लाइट रे आ कहां से रही थी, इसके टॉप से आ रही थी, तो बेसिकली जहां मीट कर रहा है वहां पे इसका टॉप होगा, ठीक है, तो इसका टॉप यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये यही चीज यहाँ पे बनी हुई है, आप देख सकते हैं। मैं बस बताना चाहता हूँ क्यों एरो नीचे बनाते हैं हम लोग, क्योंकि ये एरो से ही लाइट रे आ रही है, तो बेसिकली इससे जो लाइट रे इंसिडेंट हुई है, तो रिफ्लेक्ट होने पे ये उसी चीज का इमेज बनाएगा, तो उस एरो का टॉप यहाँ पे होना चाहिए। तो ये हमारी इमेज बन गई ए डैश बी डैश। अब इसकी इमेज के हम प्रॉपर्टीज फटाक से लिख देते हैं, ठीक है। तो पहला पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है, एट सी है, यानी कि अगर सी पे अगर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो सी पे इमेज भी बनेगी। सेकेंड थिंग इज कि हमारा मैग्निफिकेशन कैसा है, सेम साइज है, यानी मैग्निफिकेशन 0 है, तो यानी कि सेम साइज इमेज, सेम साइज। एंड द थर्ड इज कि हम लोग ने देखा था नेचर ऑफ इमेज क्या है, अगेन द नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब हम ऑब्जेक्ट को और फर्दर क्लोज ले आएंगे मिरर के, और हम लोग उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे, तो बिटवीन सी एंड एफ। तो यहाँ पे आप लोग देख लो, यहाँ पे ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि हम लोग सी एंड एफ के बीच में रख दिया। पहली लाइट रे हमने ली है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये फोकस से होके पास हो जाएगी, और दूसरी लाइट रे ली है हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू, तो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जब रिफ्लेक्ट होगी इधर से आएगी, तो ये जो मीट करेगी, तो ये यहाँ पे कहीं ये देखो आप, इसको भी मैं हाँ, तो ये यहाँ पे, ये मेरे डायग्राम में यहाँ पे मीट कर रहा है, तो ये प्रॉपर्ली डायग्राम पे यहाँ पे मीट कर रहा है, तो दोनों वही चीज है कि बेसिकली आपका इमेज फॉर्मेशन जो होने वाला है वो बियॉन्ड सी होने वाला है। इसमें आपको मैं एक इंटरेस्टिंग पैटर्न बताऊंगा बच्चों, ठीक है, बाद में। तो अभी यहाँ कहाँ है, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। अभी क्या है कि हाँ, सेकंड इज ए मैग्निफिकेशन, तो इट इज अ मैग्निफाइड इमेज, ठीक है, इट इज अ मैग्निफाइड इमेज। एंड द थर्ड इज कि इसका नेचर कैसा है, तो अगेन इट इज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, सो वी हैव दिस। नाउ अब हम लोग उसको और मूव करके कहां पे ले आएंगे, फोकस पे ले आएंगे, ठीक है। फोकस पे ले आ दिए, फोकस पे ले आ दिए बच्चों। तो देखो फोकस पे क्या हो रहा है, एट फोकस रखा हमने, तो इसका जो ये पहला रे हमने लिया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो कि फोकस से निकल जा रही है, और दूसरा वही सेंटर ऑफ कर्वेचर का, ये कभी मीट नहीं करेगा, ये इन्फिनिटी। और जब इन्फिनिटी पे इमेज फॉर्म होती है तो इसके मैग्निफिकेशन के बारे में हम लोग ऐसा कहते हैं कि इट्स हाईली इनलार्ज। इन्फिनिटी पे हम इमेज देख नहीं सकते, तो वी जस्ट बिकॉज इट्स गोइंग पैरेलल, सो वी टेक इट एज कि इट इज विल बी हाईली इनलार्ज इमेज। तो पहला हमारा जो होता है, पहला क्या होता है, पोजीशन ऑफ इमेज, तो ये हो जाएगी इन्फिनिटी पे। सेकेंड इज हमारा जो ये है, द सेकेंड थिंग इज हमारा मैग्निफिकेशन, तो हाईली इनलार्ज लिखोगे आप, ठीक है, हाईली इनलार्ज, हाईली मैग्निफाइड। और थर्ड है हमारा कि नेचर ऑफ इमेज, इट वुड बी अगेन रियल एंड इनवर्ट, सॉरी इसको मैं इरेज कर, सो सॉरी 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 कहाँ गया हमारा, हाँ ये एक मिनट, हाँ ये हो गया हमारा रियल एंड इन्वर्टेड, इसको हम कर देंगे रियल एंड इन्वर्टेड। तो दिस इज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ओके, सो ये हमने देख लिया कि रियल एंड इन्वर्टेड बन गई है। अब जो लास्ट केस है वो स्पेशल केस होता है कॉनकेव मिरर के लिए, जहां पे हम लोग इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, ठीक है, हाँ, बिटवीन पोल एंड फोकस। अब यहाँ पे अब देखो, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ है, ठीक है। अब क्या है कि जो इसकी पहली लाइट रे है वो हम पोल पे करते हैं, क्योंकि अभी कैसा है, हाँ, तो इसको हमने क्या किया, पोल पे डाला। तो ये हमने पता है कि ऑब्लिक्वी जो है एंगल आई को एंगल आर फॉलो करते हुए इस प्रिंसिपल एक्सिस को फॉलो नॉर्मल मानते हुए ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया। सेकंड हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लाइन को लेते हैं। अगर आप पैरेलल भी लोगे तो भी इमेज आती है, अगर आप चाहो तो इसको पैरेलल ले लो और फिर फोकस से पास करो तो भी वो वही मीट करेगी, पीछे ही मीट करेगी, आगे नहीं होगी, ठीक है। तो ये देखो, ये इस डायरेक्शन में निकला, ये इस डायरेक्शन में निकला, इट्स नेवर मीटिंग, ठीक है। ये पॉइंट्स कभी, ये लाइंस कभी मीट नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो हमारी इमेज बन गई है, ये एक वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है। इरेक्ट इमेज क्यों है, क्योंकि देख रहे हो ना, ये जो शेप है ये जैसा इमेज था, जैसा ऑब्जेक्ट था उसी की जैसी बनी है, एकदम सेम शेप की है, मैं साइज की बात नहीं कर, शेप की है, ऐसा ऑब्जेक्ट था, ऐसा इमेज बन गया, तो दैट्स गोइंग टू बी द सेम। अब हम बात करेंगे मैग्निफिकेशन के बारे में, तो इट्स इन लार्ज इमेज हमें दिख रही है,
बट कैसी है वर्चुअल इमेज है, क्योंकि आप मिरर के पीछे फॉर्म हुई है। वर्चुअल इमेज को हम डॉटेड, जैसे कि यहाँ पे डॉटेड लाइन से दिखाया है, हम ऐसी डॉटेड लाइन से दिखाते हैं वर्चुअल इमेज को। तो इमेज के बारे में हम थोड़ा सा लिख दें, तो इमेज के पोजीशन के बारे में हम लिख देंगे बिहाइंड द मिरर। ओके, उसका और टेक्निकल टर्म देखा जाए तो बिहाइंड द मिरर ही एक्चुअली है मुझे लगा था कि कुछ और, बिहाइंड द मिरर। सेकंड इज इसका मैग्निफिकेशन, तो इनलार्ज। ओके, एंड द थर्ड इज योर क्या बोलते हैं उसको, अपना नेचर ऑफ इमेज, तो ये हो गया वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई। अब क्या करेंगे हम लोग, फटाफट रिवीजन करेंगे 6 केसेस का। ठीक है, ये हमारे 6 केसेस का रिवीजन है। ठीक है, अब आपको मैंने बोला था कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखाने के लिए। ठीक है, तो आप इसको छोड़ दो, इन केसेस को देखो बस, ये शॉर्टकट में बता रहा हूं आपको, शॉर्टकट। ये देखो आप, पोजीशन ऑफ इमेज और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज को बस। ठीक है, साइज ये आपको, फिर रियल एंड इन्वर्टेड तो सारे केस के लिए होता है, कॉनकेव भी आपको पता है। ठीक है, अभी आप देखो, ये देखो, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो फोकस पे बनी इमेज, अगर इमेज फोकस सॉरी अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज बनी इंफिनिटी पे। यानी कि अगर बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट रखा है तो बिटवीन एफ एंड सी इसकी इमेज बनी, अगर बिटवीन एफ एंड सी अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो बियॉन्ड सी इसकी इमेज बनेगी, और एट सी पे तो एट सी। तो बेसिकली फर्स्ट सेकंड, ये जैसे 9 का टेबल हम लोग याद करते हैं ना, कि 36 और फिर 45, 45 का 54 कर दिया, फिर 63 कर दिया, ऐसे ही यहाँ भी देखो कुछ हो रहा है। सी तक हमने वैसे ही रखना है। ठीक है, सी पे एट सी हो जाएगा, मतलब कि इमेज भी एट सी रहेगी। मैं इस कॉलम की बात नहीं कर रहा हूँ, इसको सिर्फ मैं एक आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, याद करने का। तो अगर इमेज सी पे है, ऑब्जेक्ट सी पे है, तो इमेज सी पे, इसके जस्ट आप पलट दो, मतलब अभी इनको इसको इधर ले आ दो और इसको इधर ले आ दो। ठीक है, सिमिलरली उसके जस्ट नेक्स्ट कॉलम में इसको इधर ले आ दो और इसको इधर ले आ दो। तो दिस इज अ ट्रिक यू कुड रिमेंबर फॉर इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, इसके अलावा रिवीजन में हम लोग ये देख लिया कि जो भी हमारा ये है, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज बन रही थी, फिर डिमिनिश्ड, सेम साइज, इनलार्ज, हाईली इनलार्ज। तो आप अगर इस केस को हटा दो ना, लास्ट वाले केस को बच्चों, ये इसको याद कर, सॉरी ये क्रॉस नहीं लगा रहा हूँ, ऐसा मत समझ, ये इंटरप्रिटेशन यार तुम लोग की बहुत खतरनाक होती है। क्रॉस लगाऊंगा तो बोलोगे कि सर बोल दिए थे कि इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इसको ग्रीन कलर से ऐसे टिक कर देता हूँ। तो ये बेटा, ये आप लोग अगर ये छोड़ दोगे इस केस को, तो यहाँ भी आप देखो ना कि पॉइंट साइज से शुरू होते हुए हाईली इन लास्ट तक जा रहा, पॉइंट साइज मतलब हाईली डिमिनिश्ड, फिर डिमिनिश्ड, फिर सेम साइज, फिर थोड़ा मतलब डिमिनिश से क्या आया, इनलार्ज आया, और फिर हाईली इनलार्ज हो गया। तो ये भी एक ट्रेंड फॉलो कर रहा है, और रियल एंड इन्वर्टेड तो सारे केस में अपने रहनी है। ठीक है, तो ये शॉर्टकट है कॉनकेव को लिए याद करने, क्योंकि यहाँ 6 केसेस होते हैं ना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कॉन्वेक्स में तो सिर्फ 2 ही केसेस हैं। इसके बाद हम लोग देख रहे थे थोड़ा सा यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के कहाँ यूज होते हैं, इट इज, अभी देखो क्या है, इससे समझो इमेज फॉर्मेशन से सबसे अच्छी इमेज कहां पे आ रही है, जब हम उसको अपने ऑब्जेक्ट को कहां रख रहे हैं, अपने ऑब्जेक्ट को हम लोग रख रहे हैं कहां पे, ये देखो, जो कि इमेज हमको विजिबल हो। विजिबल इमेज कौन सी होती है बच्चों, वर्चुअल इमेज हमको विजिबल होती है। तो बिटवीन पोल एंड फोकस, सो कॉनकेव मिरर के बहुत क्लोज आना पड़ेगा। यानी कॉनकेव मिरर हम कहां से यूज करते हैं, अगर जनरली यूज करते हैं तो बहुत क्लोज आके यूज करते हैं। कॉनकेव मिरर के हमको फोकस और पोल के बीच में अपने ऑब्जेक्ट को रखना है। तो बेसिकली डेंटिस्ट के पास एक टूल होता है जिससे वो लोग टीथ के नीचे का जो भी होता है उससे वो लोग ऑब्जर्व करते हैं, तो वो टीथ के बिल्कुल पास वो रखते हैं। या फिर जो मिरर्स होते हैं जिससे हम लोग अपने मान लो ये शेविंग करते हैं, तो वो क्या करते हैं, एकदम पास ले आके देखते हैं, एकदम ऐसे। आप देखा होगा अपने जो कहीं बहुत ही मतलब ट्रेडिशनल लोग होते हैं, एकदम जो ट्रेडिशनल मिरर यूज करते हैं, तो एकदम पास रख के वो लोग शेविंग करते हैं। या फिर डेंटिस्ट का मैंने वो बेस्ट एग्जाम्पल। तो ये क्या है कि हमको जब हम इनलार्ज और वर्चुअल इमेज तभी मिलेगी जब हमको क्या होगा कि हमने ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा, तो यानी कि बहुत पास रखना पड़ता है। देन वी गेट द परफेक्ट इमेज एंड अ वर्चुअल इमेज दैट वी कैन सी। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, दे आर ऑफन यूज एट शेविंग मिरर, डेंटिस्ट यूज दिस मिरर।
द लार्ज कॉनकेव मिरर कैसा होता था बच्चों, मैंने शुरू में बताया था कन्वर्जिंग मिरर। लार्ज कॉनकेव मिरर यूज्ड टू कंसंट्रेट लाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेसेस। सोलर फर्नेसेस, सोलर से मतलब हमें सनलाइट से मिल रही है एनर्जी, तो सनलाइट के रेज को एक जगह पे कन्वर्ज करके उसको कंसंट्रेट करके हमको एनर्जी चाहिए, इसलिए हम लोग कॉनकेव मिरर्स का यूज करते हैं। और जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है कि हम लोग के सर्च लाइट्स और व्हीकल हेडलाइट्स में यूज किया जाता है, अगेन फॉर द सेम रीजन, बिकॉज वो हर चीज को एक बीम को कंसंट्रेट करता है और पावरफुल बना देता है। तो बच्चों अगर आपने एक्सप्लेनेशन कॉनकेव का अच्छे समझ लिया ना, तो एप्लीकेशन तो आप ऐसे ही लिख दोगे। ये सबसे पहले एप्लीकेशन में तो ये लिखोगे जो चीजें पास से यूज होती हैं, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं, गाड़ी का साइड मिरर जो होता है वो लिख के आते हैं कॉनकेव में, वो मत करना। आप इतना याद रखो कॉनकेव को पास रखना पड़ेगा, तो आपको वर्चुअल इमेज मिलेगी जो आप देख सकते हो। गाड़ी की साइड में लगा दोगे रियल इमेज बनेगी, कुछ उसमें दिखेगा ही नहीं आपको, ठीक है। तो इसलिए कॉनकेव मिरर का यहाँ पे हमने ये देख लिया। अब हम लोग आते हैं कॉन्वेक्स मिरर पे, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो इसमें सिर्फ दो ही केसेस होते हैं कि ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे होता है, और ऑब्जेक्ट जो होता है अपना सेकंड इज बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। तो ये दो ही चीजें होती हैं। इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट होता है तो आप देखो सारी रेज आ रही हैं, सारी रेज इंसिडेंट है, और ये यहां से रिफ्लेक्ट कर जा रही हैं, ठीक है। रिफ्लेक्ट कर रही है तो हमको फिर से वही एक्स्ट्रापोलेटेड रेस रे को पीछे वो करना पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और हमने देखा क्योंकि ये रे पैरेलल है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो फोकस पे ही जाके मीट करेगी। और ये जो रे है ये क्या है, ये यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, हाँ क्योंकि यहाँ पे होगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू है, तो ये भी सेम लाइन फॉलो करेगी। तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही है। इमेज कैसी है, इमेज का सबसे पहला पोजीशन तो एट फोकस, तो अगर इमेज इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो एट फोकस इमेज बनेगी। सेकंड हमारा इसके बारे में हम लोग लिखेंगे इसके मैग्निफिकेशन बारे में, तो ये पॉइंट साइज इमेज होगी, पॉइंट साइज, ठीक है। थर्ड इज इसके हम लोग नेचर के बारे में लिखेंगे, तो क्योंकि ये मिरर के पीछे फॉर्म हो रही है तो इट वुड बी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। वर्चुअल इमेज बच्चों हम लोग देख सकते हैं, रियल इमेजेस को सिर्फ स्क्रीन पे देखा जा सकता है, इतना याद रखना, ठीक है। द नेक्स्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। इंफिनिटी एंड पोल मतलब कोई भी बेसिकली कोई भी हम लोग इस पे स्पेसिफिक डिस्टेंस पे जो कि मेजरेबल, इंफिनिटी मेजरेबल नहीं होता है, तो कोई भी मेजरेबल डिस्टेंस पे रख रहे हैं, तो देखो क्या हो रहा है, एक तो हमने रे ले ली है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये रिफ्लेक्ट होगी, तो इट वुड बी अपीयरिंग टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस, ओके। तो ये फोकस पे हमने इसको एक्स्ट्रापोलेट किया, तो ये फोकस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने ले लिया इसका नॉर्मल इस रे का, तो एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर का आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सेकंड इज जो हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू रे लेंगे तो इट विल फॉलो इट्स स्ट्रेट पाथ, द सेम पाथ इट विल गेट रिफ्लेक्टेड। इनका मीटिंग कहाँ पे हो रहा है, इनका ये देखो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि अगर पॉइंट इमेज के एरो से अगर हम ले रहे हैं तो ये जहां मीट करेगा यहाँ पे भी, ये मान लो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो बेसिकली सेम लाइन में ही सब हुआ है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे एरो है तो यहाँ भी इसका एरो ही होगा इमेज का, तो बेसिकली एरो यहाँ पे आया, ठीक है। अब क्योंकि वर्चुअल इमेजेस डॉटेड, याद रखना यार ये सब छोटे छोटे मिस्टेक्स होते हैं। वर्चुअल इमेज को आप लोग लाइन ड्रॉ करके आ जाओगे, नहीं, वर्चुअल इमेज जो भी मिरर के पीछे होगा ना, ये ध्यान रखो, जो भी मिरर के पीछे होगी चीजें उसको हम लोग डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, चाहे वो एक्सटेंडेड रेज हो और चाहे वो इमेज हो। तो इमेज जो यहाँ पे मिल गई हम लोग को, वो कैसी मिली है, पोजिशन उसी क्या है, बिटवीन पी एंड एफ, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे बिटवीन पोल एंड फोकस। सेकेंड इज हमारा इसका मैग्निफिकेशन कैसा है, तो डिमिनिश्ड इमेज है, डिमिनिश्ड। और थर्ड इज हमारा इसमें कैसा है कि हाँ, थर्ड इज हमारा नेचर कैसा है इसका, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, देख सकते हो आप इरेक्ट इमेज है, वर्चुअल इमेज है क्योंकि मिरर के पीछे, और वर्चुअल है तो इरेक्ट होगी। तो दिस सम वर्चुअल एंड इरेक्ट कम्स टुगेदर, रियल एंड इन्वर्टेड ऑलवेज कम टुगेदर, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना बच्चों। तो हमारा रिवीजन फिर से वापस यहाँ देखते हैं हम लोग। तो एट इन्फिनिटी जब ऑब्जेक्ट रहता है तो फोकस पे बनता है पॉइंट साइज इमेज, हाईली डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकंड इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड अ पोल ऑफ मिरर, तो बिटवीन पोल एंड फोकस बिहाइंड द मिरर बनता है इमेज, और साइज ऑफ इमेज क्या होती है, डिमिनिश्ड होती है, ठीक है। और इसका नेचर कैसा होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। अब एक चीज मैं बताना चाहूंगा, एप्लीकेशन डिस्कस करने से पहले एक बार यहीं पे देखो, मिरर से इतना बोला है कि सिर्फ एक आप फाइनाइट डिस्टेंस पे रखो, यानी कि यहाँ पे ये बात नहीं हो रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी दूर भी रख सकते हैं हम लोग, मतलब मिरर यहाँ पे तो काफी दूर ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, लेकिन इमेज कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, हमको दिखना है। गाड़ियों की रियर जो इमेज होती है उसमें क्या लिखता है, ऑब्जेक्ट आर क्लोजर इन दी मिरर देन दे अपीयर, ठीक है, ऐसे ही कुछ, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट, बट देन बेसिकली मिरर में जितना वो रिप्रेजेंट होता है
उससे क्लोज होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि हमको उनका डिमिनिश्ड दिखता है इमेज। और आप देखो ना कि ये जो इसकी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, और ये इसका देखो बिहाइंड द मिरर कितना कम डिस्टेंस है इमेज की, ठीक है। तो इसलिए वो लोग ऐसा लिखते हैं। और साइड मिरर्स में कॉन्वेक्स मिरर ही यूज होता है। क्यों यूज होता है? क्योंकि वो बड़े इमेजेस को हम लोग अब कार की इमेज, कार जैसा आपको दिखने लगे इमेज में, तो आपको कुछ और दिखाई देगा क्या? एक बाइक पूरी बन के आ जा रही है, तो आपको डिमिनिश मतलब स्मॉल साइज इमेज चाहिए। तो जो हम लोग यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर देखते हैं, सबसे पहले आता है रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल। सबसे पहला इसका कॉमन यूज है रियर व्यू मिरर। दीज मिरर आर फिटेड ऑन द साइड्स ऑफ व्हीकल इनेबलिंग ड्राइवर टू सी। अब ये फिर से वही चीज है, same. Convex mirror are preferred because they are give an erect though diminished image. Also, they have a wider field of view as they are curved outwards. Thus, convex mirror enable driver to view much larger area than it would be possible with a plane mirror. ठीक है, तो प्लेन मिरर आप देख लो ना, आप नहीं उतना उसका उस जो हम लोग बोलते हैं ना वाइड एंगल, जो अभी कैमरा सारे सेल्फी कैमरा सारे वाइड एंगल, तो वो वाइड एंगल प्रोवाइड करता है कौन? कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर से ज्यादा। कॉन्केव तो हम यूज कर ही नहीं सकते क्योंकि रियर एंड इन्वर्टेड इमेजेस होती हैं, तो हम लोग देख नहीं सकते। अब बचा प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर इसलिए यूज करता है क्योंकि उसके एक तो एंगल बहुत ज्यादा होता है, कवरेज एंगल बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। एंड फिर वो एक डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म करता है जो कि प्रिफर्ड होता है। सिर्फ ये देखना होता है कि पीछे कोई गाड़ी तो नहीं आ रही ना, उस गाड़ी का डायमेंशन तो हमें देखना नहीं है कि उसको हम सेम साइज में ले, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट फॉर दिस लेक्चर स्टूडेंट्स। हमने इमेज फॉर्मेशन देख लिया, रे डायग्राम्स देख लिए, इमेज फॉर्मेशन के रूल्स देख लिए, कुछ प्रीरिक्विजिट्स के बारे में आपको बताया। सो दीज वर ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर ऑन इमेज फॉर्मेशन एंड रे डायग्राम्स। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी वुड बी सॉल्विंग मिरर problems or numericals on mirror formula and magnification. So I request you to continue with this series, and we would be meeting in the next lecture. Okay, so thank you so much, and if you like this video, please hit the like button. If you have any suggestion, please provide in the comment, and please provide with the comment. You can join us on our telegram channel, जिसकी लिंक मैंने आपको previously वीडियो में बता दी है। and यहाँ पे see in the code you can use as you said, as I told you, Srijan. So you can use my code Srijan to get 10% in the instant discount on your subscription. So that's for today. We'll be meeting in next lecture with lot of new topics, lot of innovative ideas, and I'll telling you some shortcuts. So we'll be solving the to solve the numericals and where to be careful while solving the numericals. So we'll be meeting in the next chapter. Till then, take care, stay safe. Thank you so much.